Hello, good morning. Hello, sir. Good morning. How are you? How are you? All good. Okay. So, what we have planned for today? Sir, trigonometry exercise 15 B.2. 15 D B.2. B.2 exercise. Okay. कौन सा करना है इसमें? सर इसका कॉन्सेप्ट बता दो, एक्सरसाइज मैं कर लूँगा इसकी। कॉन्सेप्ट बता दूं. ठीक है. यस सर। ओके. तो कॉन्सेप्ट इसका ये है. तो इसके बेसिक कॉन्सेप्ट आप गो थ्रू किए हो मतलब. ठीक है ना. यस सर। So we know that the trigonometry ratios are applicable in right angle triangle. Okay. So if we have a right angle triangle, right, so we can apply the trigonometry ratios. For that we should know something about the name of the sides. Like if this is the right angle triangle ABC, where the right angle is at B, okay, and angle C is, let's say, theta, right? So with respect to that angle, with respect to that theta, what is the name of BC? Adjacent. Adjacent side. Hmm? यस सर। With respect to angle C or theta, the side BC is called adjacent side. Side AB is called opposite side, and side AC is called what? What is AC called? Hmm? सर हाइपोथेनियस। Yes. So side AC is called हाइपोथेनियस। hmm, hypotenuse. Okay. So hypotenuse is the longest side in right angle triangle. Now, in questions like in 15b.2, we are given two sides and two angle. One of them is 90 degree and the other is represented by theta, right? So let's okay. Before that, let me know about यस what are the trigonometry ratios. So what would be sine theta in this case? What are the definition of, as per the definition of trigonometry ratios, what would be sine theta? Opposite upon hypotenuse. आपने बेसिक किया है ना. यस सर। Then answer quickly. ए बी अपॉन ए सी। Yes, AB upon AC. What would be cos theta? ए सी। Cos theta would be adjacent upon hypotenuse, which is सर BC ए upon सी। AC, right? BC upon AC. And what would be tan theta? ए सी। Opposite upon adjacent, सर right? ए बी अपॉन बी सी। BC, yes. So AB upon BC, right? So these यस information we should know when we apply trigonometry ratios in any triangle. Okay. So if suppose we take one first question, let's discuss the concept by taking question here. So the first question in 15b2 is this. Okay. Two sides are given and two angles are given. One of them is 90 degree, right? The other angle is theta. So this is the question. What they've asked? They've asked to find out angle theta.
Okay, we have to measure the angle theta, right? So as we know, Yes, the sir. as far as the name of the sides are concerned, so with respect to this theta, right? If I what would be this 2 centimeter sides called with respect to theta? What would be this? The vertical side is called adjacent side. So yes, sir. Adjacent side. Adjust. Yeah, I just one name. That is adjacent side, and the what would be the 3 centimeter sides called opposite side, Opposite side. and this would be hypotenuse, right? I put Yeah. So we have to figure out angle theta here. So which trigonometry ratios should I take? Okay, which will include the given things in the question, which will include 2 centimeter and 3 centimeter. It means that will include opposite and adjacent. So which trigonometry is there, trigonometry ratio, which has opposite and adjacent? the tan theta. Tan theta. So just a second, I So just write. tan theta. Yeah. So these are the definition, right? So now tan theta we will take here. Tan theta is equal to opposite upon adjacent, right? So that would be 3 by 2. Opposite adjacent. Now to find out theta, we should take the inverse function. So tan will go like this. Tan will go in right hand side with inverse function. So tan inverse 3 by 2. Okay. So from calculator, we can Yes, sir. calculate this. So let me know the answer from calculator. Do you have calculator right now? Yes, sir. बताओ आंसर. So 56.30. 56.30 degree. 30. Okay. So you always note that the angle will always be acute angle. Okay. Theta will always be an acute angle. Okay. Because we know that one of the angle is 90 degree, one of the angle is 90 degree, so obviously other two would be less than 90 degree, right? Is it clear? Yes, sir. So that will always be less than 90 degree. Now so 15b2 अभी कर लोगे आप, या और कुछ इसमें पूछना है तो बोल दो अभी. Like question number 1 2, should we do second one question? Anyone? So C part. सी. कौन Second सा? one. सेकंड का सी. Yes, sir. अच्छा, करते हैं वही फिर. Yes, sir. सेकंड का सी क्या दिया इसमें? फाइंड ऑल द अननोन साइड्स एंड एंगल्स इन द फॉलोइंग, राइट? तो अभी एक डायग्राम क्या है इनका. दिस इज द राइट एंगल ट्रायंगल. Okay, so this one is x kilometer, this is 12.06 kilometer,
and this is 9.45 kilometer, right? And they ask about this angle A and angle B, and X is also unknown, right? X is also unknown. So what we should do here, find all the unknown sides and angle in the following. So if suppose you consider angle A here, right? So with respect to A, what are these two sides called? This is hypotenuse, obviously. The 12.6, 12.06 is basically hypotenuse, because this is opposite of the 90 degree, right? This is opposite Yes, sir. to the 90-degree angle. And with respect to A, uh, this 9.545 kilometer sides is called adjacent. Am I right? Okay, sir. Yes. Yes, sir. So what we'll do here, we can Yes, apply, sir. yeah, we can apply which trigonometry ratio to figure out A here. Which trigonometry ratio we should apply? That include adjacent as well as hypotenuse. Cosine theta. Cosine, because cos theta will include adjacent and hypotenuse, right? You remember the formula here. See, cos theta will include adjacent and hypotenuse, right? See the second line, cos theta includes adjacent Yes, sir. hypotenuse, right? So we'll apply that trigonometry ratio here. So cos A, okay, cos is nothing if you don't apply angle to it. So cos A is equal to hmm, adjacent, which is 9.45 upon 12.06, right? Because we know that Yes, sir. cos A is equal to adjacent upon hypotenuse, right? So let me know the ratio. Let me Yes, know sir. this ratio. What is this value? No, 9.45 divided by 12.06. So 0.783. 0.783. Now I am giving you one hint here. If suppose this value is greater than 1, hmm, then you have made something wrong in calculation. Yes, sir. If this value 0.783, instead of that, if you are getting something more than 1, it means there is something wrong in your calculation. Understood? That will always, I'm talking about cos. Okay, this holds for sine also. Are you getting what I'm saying here? So that value will always be less than 1. Okay, always be less than 1 for sine as well as cosine. Understood? This is need to be noted. Yes, sir. So when you get this cos A is equal to 0.783, what would be angle A? So angle A can be calculated by taking inverse of the right hand side. Let me know the answer. So 38.463. 38.46 degree. Okay, so as I said, this always must be less than 90 degree, so it will be correct. Okay, now when you have A as 38.46 and one of the angle is 90 degree, can you figure out B? Yes.
How would you calculate B? Yes, sir. Because sum of all the angle is 180, 180. 180, Yeah. So 180 minus 90 plus 38.46. 30. So what would be the answer? Or you can simply say 90 minus 38.46, because the other two angles will sum up to 90. The acute angles of right angle triangle is sum up to 90 degree. So 90 minus 38.46 degree is how much? 51.54. 51.54 degree. Okay. So this is the angle B. Now we need to find out X. So which trigonometry you should apply here to figure out X, and which angle you will take? Should we take sine A? If we take sine A, right, it will include X and hypotenuse. Am I right? If you take sine A, Yes, sir. so with respect to this angle, angle A, the x kilometer side is considered as opposite side. Okay, so that side become opposite of angle A. So what is sine A? Sine A is opposite upon, what is the formula? Opposite upon Hypotenuse. 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 Yes, yeah. So opposite is x kilometer. So our requirement is to include x in the calculation so that we can calculate x, right? So that's why I took sine A, which include opposite. So opposite is x upon hypotenuse is 12.06, right? Hmm? And we know the Yes, sir. value of A also. So we can simply put that value here inside the sine function. So 38.46 is equal to x upon 12.06. Any doubt here? Because we know the value of A. No, sir. So we can calculate x by just transferring the terms. So 12.06 into sine 38.46 degree. Just let me know the answer of this. 12.06 into sine 38.46. You can use calculator because direct value is not known to us. And as I said, this value will always be less than 1, right? This value is always be less than 1. Which value I'm talking about? Sine 38.46. So sine. Yes. Less than or equal to 1, huh? Less than or equal to 1. It may be equal to also. Yeah. सर पर ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? गुड क्वेश्चन. आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन बोला है, लेकिन इसके लिए आपको यूनिट सर्कल मेरे को एक्सप्लेन करना पड़ेगा. तो यूनिट सर्कल जो है इसके बाद है, आई थिंक, राइट. Let me check the chapter. Yeah, unit circle is on page number 327. For now, I can tell you one thing. Hmm? दिखा आपको 327 पे यूनिट सर्कल है? Yes, sir. दिखा ना? Yes, sir. For now, I can tell you one thing. I'll explain you unit circle. Actually, the sequence of the chapter is to explain you unit circle, then sine and cosine ratio, and a lot of things. But we are directly jumping into the calculation part. Okay, and as per the pattern given in this book, is basically to understand the right angle triangle, to understand the opposite hypotenuse, and these three basic trigonometry ratios. So it's okay if you are fine with working, then it will be easy to understand later, right?
But one thing I can tell you why it is so, like always less than or equal to 1. So you can use your calculator to verify that. So if you put any values inside sine function, okay, you put the bigger value, the smaller value, the negative value, whatever you put inside the sine function, the calculator will throw the values between 1 and minus 1. Okay, so that you can check it, right? That you can verify from calculator. तो आप दो तीन वैल्यू जरा पुट करके देखो, आप कोई भी बड़ा छोटा, कोई भी बड़े कितने भी 1 लाख 2 लाख कुछ भी डाल दो आप साइन के अंदर, जरा डाल के देखो आप क्या वैल्यू आ रहा है। कितने भी बड़े वैल्यू डालो, कुछ भी डालो, रेशियो जीरो डेसिमल कुछ भी डालो, पॉइंट एट वन कितना आ रहा है, क्या वैल्यू आ रहा है। माइनस 0.819। तो ये -1 से 1 के बीच में ही आ रहा है ना। एक्चुअली जो मैंने रेंज दिया है यस सर। वो भी लेस देन 1 नहीं है, लेस देन इक्वल टू 1 नहीं है। द रेंज इज -1 to 1 है एक्चुअली, ठीक है। तो ये यूनिट सर्कल में एक्सप्लेन करूंगा। अभी साइन 90 डालो, आप जरा साइन 90 डालो, साइन 90 डिग्री डालो। सो वन। आया 1। साइन -90 डालो, सो -1। -1 है। तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि चलो 90 डाल के 1 मिल जाएगा। नहीं तो आप कितना भी बड़े वैल्यू भी डालोगे ना, तो वो जो रहेगा उसका रेंज, दैट वुड बी बिटवीन -1 to 1, ठीक है। अब ये क्यों होता है तो थोड़ी देर के बाद हम समझेंगे, जैसे वील कम टू दैट पेज। और शुड आई एक्सप्लेन यू फर्स्ट दैट थिंग, ऐसा आप बोलो, क्योंकि कोई भी ऑर्डर चलेगा यहाँ पे, ऐसा कोई दिक्कत नहीं सर बाद में समझा देना। है। बाद में समझा तो ठीक है, क्योंकि वो मैं अगर लेता, आपको शुरुआत से लेता तो मैं वही पहले समझाता, यूनिट सर्कल ही पहले बताता। तो आप क्वेश्चन पे आए तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो अभी आप बताओ मुझे ये क्या होगा, 12.06 इंटू साइन 38.46 कितना हो जाएगा, फाइनल वैल्यू क्या होगा बताओ। 7.0 सो 7.500। कितना, 7 पॉइंट, 7.500। ओके 7.500। अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 3, दैट इज डिपेंडेंट ऑन क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है ना। हाँ, उसमें क्या बोल रहा है, चेक योर आंसर फॉर एक्स, यस सर। check your answer for x in question number 2 using Pythagoras theorem, ठीक है, using Pythagoras theorem। So you know the Pythagoras theorem, right? You know Pythagoras theorem better than me। यस सर। So what are these two sides? This is 9.45 kilometer, this is 12.06 kilometer, and what we found for x, we found for x as 7.50, right? Is it visible? यस। So to verify Pythagoras theorem, or we have to यस सर। check the answer by using Pythagoras theorem. Let's consider this is not found yet. How would you find the unknown value? Like how would you find x by using Pythagoras theorem? X square is equal to, do you remember that? X square plus टी स्क्वायर टी टी 9.45 the whole square is equal to 12.06 the whole square. Am I right? स्क्वायर। यस ठीक, सर। ठीक है ना। तो now this will give us x square is equal to 12.06 the whole square minus 9.45 the whole square. Now let me know the value of this. What would be 12.06 the whole square minus 9.45 the whole square? What would be the final value of this?
तो 56.411। कितना? 56.1411। 56.1411. Okay, so this is x square, right? Yes, sir. We have to find out x. So we Yes, will take the square root of this. So just take square root of your answer. That would be the value of x. Just take the square root of the 7.492. 7.49. So 7.492. yeah. So this is approximately what we found, right? We found 7.5, isn't it? By trigonometry ratios. Yes, sir. So this is approximately what we found. So it should be 7.5 only, but we might have missed some guessing, I think. Okay. So now Yes, sir. third question is done. What about fourth? फोर्थ का बताओ क्या करना है? सही, मैं कर लूंगा। कर लोगे? बहुत अच्छा। आगे बढ़े। यस सर। तो यस आगे सर। एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन, ठीक है। यस सर। पेज नंबर 323, एलिवेशन एंड डिप्रेशन का क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद यूनिट सर्कल है। यस सर। तो हम्म, तो मैं आपको ये पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन का कुछ कॉन्सेप्ट, ओके। एंड देन we'll move to the unit circle. I'll explain you the concept of unit circle also, and the thing which we were talking about, the range of sin theta and cos theta. तो दोनों चीज मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, देन यू विल ट्राई द एक्सरसाइज, ओके, एज अ होमवर्क, राइट। तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, सो यू कैन एटलीस्ट ट्राई द क्वेश्चंस, यस सर। ठीक है। चलो, एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन। So the heading is angle of elevation and depression. So this is basically the application of trigonometry, ठीक है ना। अभी तक हमने जो trigonometry किया है, this is the application of that. Why we have done, why we have found sin theta, cos theta, tan theta. So the application of sin theta, cos theta, tan theta, or the trigonometry is to find out the distance between two objects which are very far from each other. Are you getting that? अभी इसके पहले आपने एक इमेज देखा होगा, ये इसी बुक के पीछे एक इमेज देखा होगा आपने, अर्थ और मून का दिया हुआ है ना इमेज, पिछले पेज पे जो अर्थ एंड मून का यस सर। दिया हुआ है, उसका एंगल वगैरह दिया है, पैरेलक्स मेथड बोलते हैं उसको, ठीक है। तो वो बाद में डिस्कस करते हैं, पहले आप समझो एक चीज कि क्या देख रहे हो आप मोबाइल में, कुछ केजरीवाल ने अनाउंसमेंट किया क्या? सर कुछ। स्कूल चालू, नो सर। स्कूल चालू, अच्छा। तो क्या बोल रहे थे, हाँ। तो जो, अगर आपको मान लीजिए बोलोगे कि सर ये ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज का यूज क्या है, क्यों इतना दिमाग खराब कर रहे हैं ये साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा में, क्यों ये सब ट्रायंगल समझ गए ना अभी, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा क्या है, क्यों ये अपोजिट हाइपोटेन्यूज ये वो सब, क्यों इतना दिमाग खराब कर रहे हैं इसमें? तो एक्चुअली इसका बहुत इजी आंसर है। आंसर ये है कि इफ सपोज यू हैव टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स विच आर वेरी फार फ्रॉम ईच अदर, जहाँ पे आप ना स्केल लेकर नहीं जा सकते हो, है ना, मेजरमेंट टेप लेकर नहीं जा सकते हो, तो अब उसका डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करोगे? आर यू गेटिंग दैट?
आप वहाँ पे अभी जो एक प्रपोज डिस्टेंस है कि द Yes, डिस्टेंस sir. बिटवीन मून एंड अर्थ इज सम कांस्टेंट, राइट? द डिस्टेंस बिटवीन मून एंड अर्थ इज समथिंग, सम कांस्टेंट। सो अभी किसी ने तो ये मेजरमेंट टेप लेकर नहीं गया होगा ना मून से अर्थ, ये जो कौन गया था सबसे पहले? यूरी, मालूम नहीं, मुझे नाम भूल गया। कौन गया था मून पे सबसे पहले? Neil Armstrong. नील आर्मस्ट्रॉन्ग, हाँ। तो ये सब अभी Neil Armstrong. हाँ, कंट्रोवर्शियल है थोड़ा, ठीक है। तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग गया होगा, चलो मान लेते गया, ठीक है। तो अभी वो मेजरमेंट टेप लेकर तो नहीं गया ना कि चलो भाई डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेंगे। तो जो साइन थीटा कॉस थीटा जो हम पढ़ रहे हैं, ओके, सो दिस इज द एक्सपेंशन, द टॉपिक विल बी एक्सपैंडेड थ्रू आउट योर हायर हायर मैथमेटिक्स अंडर कैलकुलस। सो ये जो कैलकुलस का पार्ट है, सो these things are really useful to figure out the distance between the objects which are very far from each other। जैसे अभी आप मान लो आपकी बिल्डिंग है, आप नीचे खड़े हो, ठीक है। अब यहाँ से वो बिल्डिंग का हाइट आपको मेजरमेंट करना है, तो क्या आप जहाँ वो बिल्डिंग का ऊपर से नीचे तक आप क्या मेजरमेंट टेप डालोगे कितना हाइट है, ऐसे मेजरमेंट करोगे? तो कैसे करोगे? Yes, sir. तो कैसे करोगे? नो आइडिया। कभी आपने देखा है सिविल इंजीनियर लोग को वर्क करते हुए? No, sir. नहीं देखा। अभी तो लॉकडाउन में अंदर हो, लेकिन पहले तो कहीं बाहर घूमते रहोगे ना, कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम करता होगा तो ये कुछ ना कुछ एपरेटस लेकर ऐसा देखता होगा उसमें इक्विपमेंट से बिल्डिंग को, रोड को, कुछ ना कुछ तो करते हुए देखा होगा आपने कहीं ना कहीं। हाँ, Yes, sir. क्या बात। हम पैदल जाया करते थे ना स्कूल, तो हमको सब पता है। आप बस में जाते हो शायद। Yes, sir. तो देखो अभी एक हाइट है, ये बिल्डिंग है, ठीक है। अभी यहाँ पे कोई इंजीनियर है समझो, ठीक है, या आप ही खड़े हो, चलो। तो अभी आपको अगर मेजरमेंट करना है इस बिल्डिंग का हाइट, तो आप कैसे मेजरमेंट करोगे, है ना? ये एक क्वेश्चन है। तो एक सिंपल सी बात है, एक इक्विपमेंट आता है जहाँ से आप देखोगे ना, वो सिविल इंजीनियर के पास रहते हैं, तो वो यहाँ से इसको फोकस करेंगे, सरफेस को, मतलब बॉटम पॉइंट को, एंड दे विल देन यूज देयर इक्विपमेंट टू फाइंड दिस एंगल। अब ये एंगल पता चल जाएगा उनको। बात समझे? एंगल फाइंड आउट करना इजी है। आप खुद को भी जरा देखो ना, जैसे कि आप ऐसे सामने खड़े हो, हाँ, आप किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हो, तो आपको एक एंगल का अप्रोक्सीमेशन तो पता चल जाता है ना? एंगल का अप्रोक्सीमेशन पता चलता है कि कितने डिग्री के ऊपर रहेगा वो। मतलब बिना इक्विपमेंट का भी एक अप्रोक्सीमेशन मेजरमेंट आप ले सकते हो, इजंट इट? Yes, sir. ठीक है। तो उनके पास इक्विपमेंट रहता है दैट शोज द एंगल। तो ये एंगल अगर अपने को पता चल गया, मान लो, एंड दिस इज द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, तो ये डिस्टेंस तो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं ना। ये डिस्टेंस कितना किलोमीटर, कितने मीटर आप बिल्डिंग से दूर खड़े हो। आर यू गेटिंग दैट? बिल्डिंग से आप कितने दूर खड़े हो, ये तो आप Yes, sir. इजीली कैलकुलेट कर लेते हैं। तो अगर मान लो आप 100 मीटर या 200 मीटर आप दूर खड़े हो, ठीक है, बिल्डिंग के बॉटम पॉइंट से, राइट? And this angle is also known to us. Let's say the angle is 45 degree, okay? 45 कर दो या मोर Yes, देन sir. 45 कर दो, 60 कर दो, कुछ भी कर दो, इट डजेंट मैटर। मेन पॉइंट क्या है कि हाउ वुड बी यूज द ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज टू फिगर आउट द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, ठीक है। तो अगर आप ये 60 डिग्री फाइंड आउट करते हो इक्विपमेंट से, सो विच ट्रिग्नोमेट्री रेशियो यू विल अप्लाई to figure out the height of this building? Sir, tan theta. Opposite upon adjacent, very good। So tan theta हम लगाएंगे, tan theta means tan 60 degree, so h upon 200 meter, so h is equal to 200 into tan 60 degree, right? तो ये तो कैलकुलेट कर सकते हैं ना, tan 60 डिग्री। अब कैलकुलेटर है आपके पास, इंटू उसको 200 कर दो, सो यू विल कैलकुलेट द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। आर यू गेटिंग दैट? तो इस तरह से
सिर्फ आपके पास एक इक्विपमेंट है दैट गिव्स यू द एंगल। ओके, तो आप यहाँ खड़े हो, आपका आई लाइन यहाँ है, ठीक है, आप इस तरह से देख रहे हो। हाँ, आपका सामने की तरफ आप देखोगे, सो यू कैन सी लाइक दिस, ठीक है ना। हाँ, यू कैन सी लाइक दिस। लेकिन जैसे ही आप अपने आई लेवल को ऊपर करते हो, सो यू विल एलिवेट द एंगल। सो दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, मतलब आपको बिल्डिंग के पीक को देखने के लिए व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू एलिवेट योर vision. Are you getting that? You have to elevate your vision to see the peak of the building. So that is called, how much angle you have elevated your vision, that is called angle of elevation. Is that clear? ठीक है, अभी आप समझ लो, एक लाइट हाउस Yes, पे हो। sir. अभी एक लाइट हाउस पे हो आप, ठीक है। सॉरी, इतना बड़ा था से। अभी एक लाइट हाउस है, हाँ, यहाँ पे, ठीक है। और ये सी साइड है, यहाँ पे सी है, ठीक है। दिस इज सी। ये लाइट हाउस है, यहाँ पे कोई आप ही खड़े हो, चलो ठीक है। और यहाँ पे एक बोट है, हाँ, यहाँ पे एक बोट है, ठीक है। यहाँ पे एक बोट है सी में, ठीक है। आप यहाँ पे खड़े हो, यहाँ पे, ठीक है। ऑब्जर्वर यू कैन राइट। Yes, हाँ, अभी उसको अगर बोट को देखना है तो किस तरह से देखेगा वो, है ना। सामने की तरफ तो ऐसे देख सकता है, सामने की तरफ देखेगा तो ऐसे ही देखेगा। उसका जो सामने हॉरिजॉन्टल विजन है दैट विल बी लाइक दिस, ठीक है ना। सामने की तरफ तो ऐसे देखेगा। yes, अगर sir. बोट को देखना है तो कैसे देखेगा वो, उसको एंगल थोड़ा नीचे की तरफ लेना Downward. पड़ेगा, राइट। सो दैट दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। जितना वो नीचे की तरफ जा रहा है, he has to incline his angle downwards to see the boat. So this angle is called angle of depression. Am I Yes, right? sir. Is it clear to you? समझ Yes, रहे sir. हो? हाँ, तो आप इसका इमेज ले लो, चाहिए तो। बिल्डिंग है ये, ठीक है। Done, sir. डन डन। चलो अभी हम जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टॉपिक पे। तो यही एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन है। तो इसमें आप कैसे सॉल्व करोगे, जैसे अभी यहाँ पे बिल्डिंग के केस में यू कुड फाइंड आउट द एंगल, isn't it? You could find out the height of the building. Similarly, you can find out anything like in this question, in this type of question, they may ask you about what is the distance between, you know, what is the distance between this the observer and the boat. This may be the question. The lot of question can be framed in that sense, ठीक है। तो बेसिकली अपने को क्या लगाना है, we have to just apply the concept of trigonometry, right? So now Yes, sir. the very should we solve one question on this, or should I Yes, take? sir. हाँ, पक्की बात है। Yes, sir. 50. कौन सा कर दो? So 11. 11th। 11 तो बहुत आरा टेढ़ा दिख रहा है, ठीक है। चलो, तो इसमें क्या दिया हुआ है, 3 strong cables are used to brace a 20-meter tall pole against movement due to the wind. आपने ऐसा कभी किया है? Each rope is attached so that the angle of elevation to the top of the pole is 55. 55. Find the total length of the cable. ठीक है, आपने ऐसा कभी किया इस तरह से?
कभी टेंट लगाते हैं तो क्या करते हैं, ये चीज करते हैं ना, मूवमेंट से बचने के लिए भी टाइड देम, टाइड द टेंट विथ रोप लाइक दिस। ओके, तो सिनेरियो समझ में आ रहा है आपको? सिनेरियो तो समझ में आ रहा होगा। एक एक पोल है लाइक दिस, है ना? ठीक है, एक पोल है और Yes, उस पोल को रोप से क्या किया है, बांध दिया है। कहाँ पे? ये अर्थ है, अर्थ है ना? तो एंगल कितना बना रहा है वो? 55 डिग्री बना रहा है। So that angle of elevation to the top of the pole is 55 degree. Are you getting that? This is the pole. समझ रहे हो आप? yes, sir. तो ये कितना दे, हाइट कितना दिया है? द हाइट ऑफ द पोल इज 20 मीटर। ठीक है, अभी तीनों जो रोप है, दे आर मेकिंग 55 डिग्री विद द 55 डिग्री एज एन एंगल ऑफ एलिवेशन। आर यू गेटिंग दैट? तीनों रोप तीन डायरेक्शन में है, अर्थ को कनेक्ट किया हुआ है। ठीक है, और वो तीनों रोप कितने एंगल बना रहे हैं? एलिवेशन 55 डिग्री ऑफ एलिवेशन बना रहे हैं। ठीक है ना? क्वेश्चन समझ में आ रहा है आपको? Yes, sir. ठीक है, तो अभी उन्होंने क्या बोला है कि फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ केबल। ठीक है ना? तो ये जो स्ट्रॉन्ग केबल है, दिस इज केबल, दिस इज केबल। ठीक है, तो ऐसे तीन केबल है, बिकॉज द डायमेंशन आर इक्वल, ईच वन ऑफ देम आर मेकिंग 55 डिग्री as an angle of elevation. Okay, so the dimension are similar, all are equal. So we'll find out the angle, this length of this cable by using trigonometry ratio. So which trigonometry ratio you will apply here? मैंने एक ही सिनेरियो बनाया, आप समझ रहे हो, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो इस केबल का लेंथ आप कैसे फाइंड आउट करोगे? हम्म, So science है. साइंस से क्यों? साइंस से क्यों? He supposed upon the hypotenuse. ठीक है, सो साइन 55 इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, एंगल दिया हुआ है हमें, अपोजिट इज 20, द लेंथ ऑफ द केबल इज एल। सो नाउ बाय कैलकुलेटर वी कैन सिंपली कैलकुलेट 20 अपॉन साइन 55 डिग्री। तो आप बताओ मुझे, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 20 अपॉन साइन 55 डिग्री? So 46 minus 46.709. माइनस कहाँ से आ गया? माइनस तो आ ही नहीं सकता। साइन 55 का वैल्यू बताओ। एक सेकंड sir. So minus 0.999. साइन 55 माइनस 0.9, क्या बात है? साइन 55 पॉजिटिव ही आएगा। आप 55 डिग्री डालो, डिग्री में कन्वर्ट करो, मे बी यू आर टेकिंग इन रेडियन और समथिंग एल्स। आप फिर से जरा सब रिसेट मार दो कैलकुलेटर को, और साइन 55 डिग्री कितना वैल्यू है? So 0.819. 0.819। तो 819. 20 अपॉन 0.819 कितना होता है? 24.42. 24.4। So length of this cable, this one part of the cable is 24.42।
and there are such, you know, three cables. So they are asking find the total length of cable. So there are such three cables. Are you getting that? So we simply multiply this 24 by Yes, sir. 2 by 3, and that would be the total length of the cable. Let me know the answer. So 73.2. 73. 0.26. Okay. So this is the total length of the cable, 73.2 meter. Now let's move to unit circle. You try to solve the remaining question. Okay. We'll सर solve. रेडियन और डिग्री के अंदर फर्क क्या होता है? क्या बात, रेडियन एंड डिग्री के अंदर फर्क तो बहुत होता है। तो देखो, 1 रेडियन, आपको कन्वर्जन दे दो क्या? यस सर। 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 अपॉन पाई डिग्री। ठीक है, रेडियन का सिंबल ये है, ऐसा। और 1 डिग्री इज इक्वल टू, थोड़ा मैं उसको ठीक कर दूं, नहीं तो अब वो लग रहा है थोड़ा डिग्री जैसा लग रहा है, ये ऐसा है। हाँ, एंड 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियन। ठीक है, ये कन्वर्जन है। अब इसका कॉन्सेप्ट जो है वो समझाने के लिए आपको, ये है 11th में आपको एक्चुअली। ठीक है, जो इसका कॉन्सेप्ट है तो भी आपको बता देता हूँ, क्योंकि जब आप क्वेश्चन अच्छा पूछते हो तो क्या आंसर देना चाहिए। तो अगर सपोज यूनिट सर्कल है, या कोई भी सर्कल है, एनी सर्कल, इट्स नॉट लाइक यू हैव यूनिट सर्कल। अगर कोई भी सर्कल है, उसका रेडियस होगा, कुछ तो रेडियस होगा ना। यस सर। सर्कल का क्या होता है, रेडियस ही होता है ना। तो अगर ये जो आर्क लेंथ है, दिस यस आर्क सर। लेंथ, अगर मैं यहाँ पे एक आर्क लेंथ जो है हमारे सर्कल पे, अगर उसका भी लेंथ जो है, लेंथ, व्हाट आई एम सेइंग, इफ द लेंथ ऑफ द आर्क लेंथ इज आल्सो आर। आप बात समझ रहे हो? अगर उस आर्क लेंथ पे, जो आर्क लेंथ है, अगर उसका भी लेंथ आर है, आर सेंटीमीटर, आर मीटर, वॉट एवर, दैट इज सेम एज द रेडियस। तो जो एंगल ट्रेस होता है, दैट एंगल इज कॉल्ड 1 रेडियन। बात समझ रहे हो आप? बस यही है। हाँ, जो एंगल ट्रेस होता है उसको क्या बोलते हैं? यस सर। 1 रेडियन। समझ रहे सर हो? 1 रेडियन। 1 रेडियन। तो जो कंप्लीट रिवोल्यूशन होगा, अगर कंप्लीट रिवोल्यूशन होगा, हाँ, समझ रहे हो? यस सर। कंप्लीट रिवोल्यूशन अगर होता है सर्कल का, तो वो कवर करता है 2 पाई रेडियन। कंप्लीट रिवोल्यूशन, वन 2 पाई कंप्लीट, रेडियन। या वन कंप्लीट रिवोल्यूशन इज 2 पाई रेडियन। ठीक है, तो अगर 1 रेडियन, यू नो, वन कंप्लीट रिवोल्यूशन इज 2 पाई रेडियन। इफ 1 रेडियन कवर्स r distance, if 1 radian cover r distance, so 2 pi radian covers how much distance? 2 पाई रेडियन आर। Cover 2 pi r distance. So which is the circumference of the circle? यहीं से वो डेफिनेशन आया है। मतलब देखो, 1 रेडियन कितना कवर कर रहा है? r डिस्टेंस कवर कर रहा है। ठीक है, और मैंने बोला आपको कि कंप्लीट रिवोल्यूशन जो होता है वो 2 पाई रेडियन होता है। ठीक है, तो 1 रेडियन कवर्स यस सर। टू 1 रेडियन covers r distance, so 2 pi radian covers how much? 2 pi r. Are you getting that? मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, यस सर। 1 रेडियन covers r distance, r meter, so 2 pi radian covers 2 pi r. Are you getting that? यस सर। तो ये 2 pi r क्या है? सरकमफेरेंस ही है ना, जो हम लर्न करते आ रहे हैं, सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल। तो डेफिनेशन यहाँ से आया हुआ है चीज। ठीक है, यस। तो आप इसको ले लो, कॉपी कर लो, इंपॉर्टेंट चीज बताया मैंने अभी। हम्म?
चले सर यस सर। ओके, चले यूनिट सर्कल पे। यस सर। आपको ग्राफ भी है क्या? इसमें ग्राफ नहीं है ना? साइन एंड कोसाइन का ग्राफ नहीं है? डू यू नो द ग्राफ ऑफ साइन एंड कोसाइन? पढ़ा है आपने कभी, कहीं देखा है? नो सर। ठीक है, चलो यूनिट सर्कल देख लेते क्या है एंड व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट इन यूनिट सर्कल। ठीक है, सो यूनिट सर्कल, यूनिट यूनिट मतलब क्या होता है? वन। वन। तो वन सर्कल, यूनिट सर्कल मीन्स one circle. So unit वन। circle is basically the circle whose radius is one. ठीक है, whose radius is one and वन। center is at origin. Okay, and center is at origin. origin क्या होता है? 0,0। ठीक है, तो ऐसा सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं एक बार। ठीक है, एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ये क्या हो गया? यूनिट सर्कल हो गया। हो गया ना? नहीं हुआ? यस सर। नहीं हुआ? अभी कहाँ हुआ यूनिट सर्कल? ये तो भी। नहीं हुआ ना? जब तक यहाँ पे मैं ये नहीं दिखाऊं कि इसका रेडियस क्या है, 1 यूनिट है, till then this is not an unit circle. So now this is unit circle whose radius is 1 unit and center is at 0, 0, right? चलो ध्यान से जरा देखो इसको, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। एक बार ये चीज हो गया तो क्या आपको ग्राफ भी बताना इजी हो जाएगा। यहाँ पे भले नहीं दिया हुआ है बट ग्राफ इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो आप कल जाके ग्राफ भी पूछोगे या मैं ग्राफ भी सर बताऊंगा दो आपको। चैप्टर है। हाँ, सर ट्रिगो के दो चैप्टर्स है बुक में। कहाँ है? कौन सा नंबर बताओ, पेज नंबर। एक सेकंड सर। सर 579। पेज नंबर 179। सर 579। 579, पेज नंबर 579। फर्दर ट्रिग्नोमेट्री, हाँ अब आया ना ये ढंग का ट्रिग्नोमेट्री, मतलब मेन ट्रिग्नोमेट्री यही है। यूनिट सर्कल, एरिया ऑफ ट्राइंगल, साइन कोसाइन रूल, कंपाउंड एंगल। हाँ चलो आगे तक दे दिया आपको, इसमें तो और अच्छा दिया है। ग्राफ, ग्राफ नहीं दिया बट मैं ग्राफ बताऊंगा आपको। ग्राफ भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, साइन कोसाइन रूल दे दिया है। वर्किंग ज़्यादा फोकस किया है इसमें कि जितना हो सके उतना कंटेंट दे के फिर कुछ। हाँ, ये ट्रिग्नोमेट्री ग्राफ भी दिया हुआ है। हाँ, तो ये ग्राफ यूनिट सर्कल के साथ ही डिस्कस होना चाहिए, अलग से ऐसा नहीं। ठीक है, बताता हूँ। ठीक है, तो ग्राफ भी बताता हूँ। हाँ, क्योंकि आगे जाके फिर यूनिट सर्कल में मुझे ग्राफ भी डिस्कस करना ही है, तो अभी बताता हूँ। हाँ, समझ में आएगा आपको। समझ लो दोनों टॉपिक कंटिन्यूएशन में चल रहा है, तो जो प्रॉपर सीक्वेंस है वही फॉलो करते हैं। हाँ, इनका क्या मोटो है कि ये थोड़ा बता देते हैं फिर उस पर एक्सरसाइज दे दे रहे हैं। हाँ,
फिर साइन रूल बता दिया, उस पर एक्सरसाइज दे दिया, कोसाइन रूल दिया, एक्सरसाइज दे दिया, लेकिन जो सीक्वेंस है वो फॉलो नहीं कर रहे बराबर। ठीक है, चाह रहे कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन स्टूडेंट करे वैसा। ठीक है, सो दिस इज एन यूनिट सर्कल हुज रेडियस इज 1 सेंटीमीटर। ओके, अभी हम क्या करते हैं, देखो आप, अगर मैंने मेरा जो ये है, दिस इज अ लाइन, हाउ डू यू ड्रॉ एंगल 0 डिग्री, हाउ डू यू ड्रॉ एंगल 0 डिग्री, 0 डिग्री क्या होता है जरा बताओ मुझे। वैसे 0 डिग्री कभी देखा आपने, 0 डिग्री कैसे बनाएंगे एंगल? तो पॉइंट डाल के। पॉइंट डाल के, ये हो गया 0 डिग्री। करेक्ट। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, समझ गया। देखो 0 डिग्री क्या है, जो अपना ये स्टार्टिंग लाइन है, ठीक है ना, इनिशियल लाइन, और जो ये एंगल जो टर्मिनल लाइन लेके जाते हैं हम लोग, ठीक है ना, जो फाइनल लाइन रहता है, दैट इज ओवरलैप विद स्टार्टिंग लाइन ओनली, ओवरलैप विद द इनिशियल लाइन ओनली, सो इट मेक्स 0 डिग्री एंगल। ठीक है, फिर जैसे जैसे ये जो लाइन है ना, जैसे इनिशियल लाइन और जो ये एंगल ट्रेस करता है, वैसे वैसे एंगल क्या हो रहा है, इंक्रीज होते चला जाता है। ठीक है ना, एंगल क्या होते जा रहा है, इंक्रीज होते चला जाता है। लेट्स से दिस इज 30 डिग्री, फिर इसको हम वापस से थोड़ा आगे बढ़ाएं, तो दिस इज लाइक 45 डिग्री, है ना। तो ऐसे करते करते क्या होगा, ये 90 डिग्री आएगा, है ना। फिर क्या आएगा, यस सर। आपने ये सब प्रोटेक्टर से बनाया रहेगा कभी, फिर मोर देन 90 डिग्री, लेट्स से दिस इज वन ट्वेंटी यस। डिग्री फिर 180 डिग्री कैसे बना दूंगा, 180 डिग्री कैसा हो जाएगा, अब ये 90 है, ऐसा, ये 90 डिग्री है, तो इसी को फिर हम और 90 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा, मीन्स द स्ट्रेट लाइन इज 180 डिग्री। आर गेटिंग दैट, द स्ट्रेट लाइन इज 180 डिग्री। यस सर। समझ रहे हो ना। तो यहाँ पे अगर सपोज दिस इज अ पॉइंट called A. This is origin. Okay, we have line OA. So OA makes zero angle with OA. Are you getting that? OA makes zero angle with OA. अभी जैसे जैसे हम इंक्रीज करेंगे एंगल, तो लेट्स से there is a point P on this circumference of the circle. तो ये कुछ एंगल बनाएगा, क्या एंगल बनाएगा ये, क्या एंगल बनाएगा, we don't know, so we will write this as theta. ठीक है, आप बात समझ रहे हो ये चीज। क्या किया यस मैंने, सर। एक एंगल बनाया है, आई हैव कंसीडर वन पॉइंट ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल दैट मेक्स एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल। ओके, लेट्स लेट टेक पॉइंट P on the circumference of the circle. Okay, so so that so that line OA makes an angle theta with the horizontal। ठीक है, horizontal means x axis। Are you getting that? So that makes angle theta with यस the सर। horizontal। तो आप चलो एक और चीज करते हैं यहाँ पे, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज करने वाले हैं। वो क्या है कि we will draw perpendicular line from P to x axis। Okay, and let's name that as Q। I have drawn perpendicular line, I have drawn perpendicular line to x axis। Okay, drawn perpendicular line to x axis। So you have to talk about the coordinates of point P। ठीक है, इस बारे में ध्यान रखना, इसको आप एक पिक्चर ले लो इसका, और इसके बारे में आप सोचना। ठीक है, आई केप्ट वन क्लास, अदरवाइज कंटिन्यू करता थोड़ा मैं, आधा घंटा आज। ठीक है, एक जस्ट क्लास है 11 बजे रखी है।
ओके, सो यू टेक पिक्चर ऑफ दिस, ओके सर। और इसको थोड़ा ट्राई टू फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी इन टर्म्स ऑफ थीटा. ओके, ओके सर। पिक्चर ले लिया आपने. ओके, बाय यस बाय. सर। बाय बाय. बाय सर।